name of this unit is the name of this unit is law of motion. The portion which is deleted according to CPSC, you know, again we will discuss this also. According to CPSC, this portion is deleted. Note down first of all in your copy concept of force. Note down in your copy concept of force. This deleted portion. Concept of force, inertia, Newton's first law of motion, momentum, Newton's second law of motion, impulse, Newton's third law of motion. But we will discuss it little bit. Because it is मतलब we will discuss it little bit. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे. ओके, इशिता तिवारी, you are in my class. Yes, sir. Your video is not on. सर वीडियो ऑन है. आपने ब्लैक दिख रहा है आपका. ये कौन सा नया गेम खेलना शुरू कर दिया? ज्यादातर लोगों का ब्लैक हो जाता है. ये मुझे पेज चाहिए या रजिस्टर चाहिए सामने. कपिल यादव, ओपन योर वीडियो. बैकग्राउंड ब्लैक किसी की नहीं चाहिए मुझे. आयुष गर्ग, इशिता तिवारी, first of all, we will discuss the force. Anybody know the force? Kapil Yadav, open your video. Anybody know the force? What is force? पुश और पुल. Repeat. किसने बोला? सर मैंने. कनिष्का ठाकुर. Kaniška, push and pull is called force. Okay, your concept is very clear. Push or pull is called force. Either you push a body or pull a body. Right? थोड़ा बहुत हम टॉपिक्स को जरूर डिस्कस करेंगे. किसी का ऑडियो ऑन है बेटा, ऑडियो ऑफ करो. ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है. कॉन्सेप्ट छूट गया ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, ब्रिंग द बॉडी इन मोशन एंड कैन चेंज द डायरेक्शन. 3 काम करता है फोर्स. या तो स्टॉप करेगा बॉडी को, या मोशन में ले आएगा, या डायरेक्शन चेंज कर देगा. सेकेंड टॉपिक इज इनर्शिया. एनीबॉडी नो इनर्शिया? Anybody?
knows inertia in the class? No one. Kapil Yadav, are you hearing me? Kapil Yadav? Kapil Yadav? Raji ma'am, are you in the class? Anybody knows what is the inertia? What is inertia? Anybody knows? Inability to move The on smooth. property Raj Yadav, open your video. property sir, it is a property of any body in which it tries to remain in the same state of motion during any change in state of motion. Okay. Actually, it is the inability of a body. ये inability होती है किसी बॉडी की कि वो और या तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उस मोशन में ला सकती है अपने आप, अगर मोशन में है तो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकती. इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो, राइट. इनर्शिया होता है. देखिए किसी का ऑडियो खुला हुआ है, ऑफ करिए ऑडियो. ऑडियो किसी का ऑन है? किसी का ऑडियो ऑन है बेटा? देखो, इट इज an inability of a body by virtue of which by virtue of which it cannot change the state of rest or linear motion state of rest or linear motion, or can change the direction. Rajni ma'am, Rajni Bhagwal ma'am. Okay, there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. And inertia of direction. Rajni ma'am, Yes, sir. आपका सिग्नल कुछ गड़बड़ हो जाता है, आप मुझे होस्ट बना दो. Inertia of direction. Ma'am, now you are free. Okay, sir. Thank you. Okay. Now next, a small topic is momentum. Each and everybody knows momentum. Tanisha Agrawal, black background. What is momentum? Mass into velocity. Momentum. Mass I am is called momentum. okay. The Momentum is product of defined as the product of mass and momentum. लिख and लीजिए छोटे छोटे velocity. टॉपिक. राइट है, देखो छोटे छोटे टॉपिक लिख लो. It is defined as the product of mass and velocity. It is denoted by P. It is a vector quantity. It is a vector quantity. And P is equal to M into V. Its unit is
kg meter per second. Kilogram into meter per second. Okay, and dimension is mlt minus 1. Now, the Newton's first law. Anybody knows? 9th में पढ़ा है आपने? Anybody in the class? Nikhil Rathod? Newton's first law of motion. सर बहुत क्लियर नहीं आ रहा है. क्या बोल रहे हो तनिषा? बोलो. तो मैं बोलूं Repeat part. बहुत क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है सर. बहुत ब्लर आ रहा है. यस सर, अब ठीक है. आशिका सारस्वत. आशिका. यस सर. So, what is Newton's? According to this law, body continues to be in rest of state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by something net balance external force to change the state. Okay, very good. Anshika Saraswat. Thank you. Actually, the body is rest, always in rest. Body is in motion, always in motion. Whenever we apply the external force on it. अगर कोई बॉडी रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगी. ये बोर्ड है, ये ऐसी लगा रहेगा हमेशा. फैन अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए. आप ये बोर्ड है यहाँ पे, इसको आपको हटाएंगे तो फोर्स लगाएंगे तब ये यहाँ से रिमूव होगा. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, अ बॉडी इज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन. नो डाउट. A body is in motion, always in motion. Body is in rest, always in rest. Whenever we apply the external force on it. It is also known as law of inertia. Now, it is also known as law of inertia. Newton's second law of motion, anybody knows in the class? Yes sir. बोलो, कौन जानता है? Rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. According to the Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. Okay, Pooja Sharma. Right, the rate of change in linear momentum is directly proportional to the external force acting on the body. Okay, your statement is correct. The rate of change in linear momentum, note करो, is directly proportional to the external force. Now the momentum is denoted by P. Rate of change का मतलब change with respect to time. So force is directly proportional to the rate of change in momentum, linear momentum. When you remove the sign of proportionality, the constant has taken place and the momentum is always mass into velocity. Mass is a constant quantity, so dv over dt. Prince Yadav, are you in my class? Prince? Yes, sir. Prince? What is Yes, sir. rate of change in rate of change in velocity is called? Prince, rate of change in Yes, velocity sir. is called? Rate of change in velocity is called?
Momentum. Rate of change in velocity is called Kush Yadav. Kush Yadav, you are in my class. Raj Yadav, you are in my class. Kush or Raj, are you hearing me? Kush Yadav, Raj Yadav, Khushi Yadav. Yes, sir. Rate of change in momentum. Sir, acceleration. नहीं, rate of change in velocity. Yes, acceleration. Rate of change in velocity is called acceleration. Proportionality constant k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 होती है. That's why f is equal to Mass into acceleration. Mass into acceleration. mass into acceleration. Force is a vector quantity. Now father is equal to ma. याद कर लो बेटा, f for father, ma for ma. That is force. Its SI unit is SI unit of force. Newton. Anurag Singh. Yes, sir. And CGS unit. CGS. CGS unit of force. Gram centimeter per second. No. A gram मैंने एक बार centimeter बोला per था second square. एक आपको एक क्वेश्चन याद है. कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS यूनिट. अनुराग सिंह क्वेश्चन कराया था. Sir. Yes, Yes, sir, पढ़ाया. dyne. That is dyne. वो वाली dyne नहीं. ओके बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहाँ आएगा वो भी सुनो. 1 न्यूटन में कितना डाइन बताया आप सबको? कन्वर्ट जब किया था निकल राठौर 1 डाइन. प्राची मित्तल, प्राची, आर यू हियरिंग मी? Prachi Mittal, are you hearing me? Yes, sir. How many dyne in 1 Newton? Sir, 10 to the power 3. So, Gaurav Kuntal, 10 to Gaurav Kuntal, Sir, 10 to the power 5. Khushi, right? 4. S2 of 5 dyne. 9 per centimeter square. कभी भी ऐसा होता है न्यूमेरिकल में, क्या होता है, किलोग्राम वेट देते हैं. 1 किलोग्राम वेट इज द एक्चुअली किलोग्राम वेट इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स. किलोग्राम वेट इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स. बाय F फिजिकल टू m इंटू ए. वेट कभी पढ़ा होगा किसी क्लास, उसमें m इंटू जी होता है. G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. And we call W as a weight, so we also call the force as a weight. So 1 kilogram weight is equal to 9.8 Newton. Whenever you convert the 1 kilogram weight in Newton, then it is 9.8 Newton. It is also known as 1 kgf. In numericals, it may be written as 1 kgf also. Or 1 gf or 1 g ground weight, that is equal to 980 dyne. मुझे याद है किसी बच्चे ने मुझे पिछली बार इम्पल्स के बारे में बताया था क्लास में. किसने बताया था इम्पल्स? कौन बताएगा व्हाट इज इम्पल्स? किसी ने मुझे बताया था इम्पल्स के बारे में. एनीबॉडी नोस इम्पल्स?
Anybody knows in the class impulse? इसने बताया था मुझे। सुनो, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, अभी थोड़ी देर बात करता हूँ। अभी मैं टाइम टेबल में देख लूंगा आपका। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. इनका मार्क्स बताएंगे। Only 10 minutes left. Sir, Inka, what is impulse? Average force into time. Force into time. Time is short interval of time. लिखो, impulse is defined as a product of average force and time. It is also known as total effect of force. Total effect of force. इम्पल्स का इफेक्ट मैं आपको बताऊं, वो कब आपको कभी लाइन क्लास में पढ़ाया होगा। वाइल द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हेन ही कॉट द बॉल। जब कैच पकड़ता है क्रिकेट का वो कोई भी प्लेयर, तो वो हाथ को नीचे क्यों करते हैं? एनीबडी नोज दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. बोलो सारस्वत। Yes, sir. जब भी जैसे कि आपने भी एग्जांपल दिया कि जो क्रिकेटर होते हैं वो बॉल को कैच करते हैं, थोड़ा सा हैंड को पीछे जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसको फोर्स को रोकने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे किया जाता है। कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन वो तो थोड़ा सा डाउन स्ली हो रहा है। देखो, वो लोअर, वो जो अपना हाथ पीछे करेगा, टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। ये किसी का ऑडियो खुला हुआ है, सुनो। टाइम अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। राइट? कभी क्या होता है, अभी तो नहीं होता, बचपन में कभी कोई चाटा मार देता था, मम्मी या पापा को या टीचर को चाटा मार देता था, अगर बहुत तेजी से मारता था ना तो बहुत जोर से लगता था वो। क्यों? टाइम इंटरवल कम हो गया, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो गया। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना फोर्स कम लगेगा, जितना टाइम कम होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। अब आप किसी 3 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे कूदोगे, अगर फ्लोर बिल्कुल फ्लोर पक्का फ्लोर है, तो किसी का वीडियो खुला, किसी अंशिता, किसी का खुला हुआ, ये ऑडियो खुला है बैकग्राउंड में। क्वेश्चन सुनो, आप अगर 3rd फ्लोर से कहीं पक्का कहीं है, वहाँ पे गिरोगे सीमेंटेड पर, तो चोट ज़्यादा लगती है। वहीं अगर रेत हो, रेत में गिरो या नीचे गद्दे डालते हैं तो चोट कम लगती है। ऋतिक कुशवाहा, बताओ क्यों? ऋतिक कुशवाहा, आर यू हियरिंग मी? मेरा क्वेश्चन था कि 3rd फ्लोर से जब आप ऊपर कूदो, अगर नीचे पक्का हो तो चोट ज़्यादा लगती है, और नीचे अगर रेत हो या गद्दे पड़े हो तो चोट कम लगती है। क्यों? कम लगता है। Oh, anybody else in the class? Anybody else in the class? मोमेंटम सर, अगर सीमेंटेड फ्लोर पे जीरो हो जाता है मोमेंटम रिड्यूस हो जाता और है, शॉर्ट zero हो इंटरवल जाता और है, टाइम होता है। और टाइम शॉर्ट होता है। सर टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और इसका कब टाइम बढ़ जाता है बेटा? सीमेंटेड फ्लोर पर या उसमें फर्स्ट पे, उस पे? रेत पर और गद्दे पे गिरेंगे। अच्छा, जब रेत पे आप गिरेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए फोर्स का इफेक्ट कम होगा, और सीमेंटेड पे टाइम कम लगेगा, तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। यही है ना? यस सर।
Piyush Gupta. Piyush Gupta. Yes, sir. Why we provide the shockers in the bike? Do you know the shockers? Shockers sir. in the bike. Shocker देखे हैं आपने? हाँ सर, जो वो साइकिल के आगे होती है और बाइक में शॉकर्स होते हैं। आज तो साइकिल भी शॉकर्स वाली आ रही है। Why we provide the shockers or suspension to the vehicles? सर जब ब्रेक मारते हैं तो वो उससे क्या नाम है, फोर्स कम हो जाता है। नहीं, ये बताएंगे मुझे धीरे। दिव्यांश। यस सर। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा शॉकर्स प्रोवाइड करने का? सर जब सर हम सर ब्रेकर पे जाते हैं तो सर क्या होता है, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है। राइट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखिए कभी आप रोड पर जा रहे हैं, गड्ढा आ जाए, शॉक कुछ भी आ जाए, तो जैसी गाड़ी उसमें जाएगी नीचे, गाड़ी जब नीचे जाएगी तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट कम लगेगा। तो वो एक कहावत है, जोर का झटका धीरे से लगा, शॉकर्स की वजह से। दे प्रोवाइड द लेस फोर्स बिकॉज द टाइम इंटरवल इज इंक्रीजेस व्हेन द सस्पेंशन इज गोइंग अप डाउन। जब शॉकर्स नीचे जाते हैं या कार में सस्पेंशन होता है वो नीचे को जाता है, जर्क होता है, तो टाइम बढ़ जाता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड द शॉकर्स टू द बाइक्स। अनदर क्वेश्चन इज टू अंशिता त्यागी, ये क्वेश्चन बोलती है। अंशिता, Yes, sir. ऑलवेज प्रेप द ग्लास वेयर्स, मतलब कांच के जितने ग्लास वेयर्स होते हैं, we always prep the glasswares by the newspaper and place some straw between them when you pack the glasses or you bring the glasses from market. These glasses are put in a box which contains the papers or the straw. Or why is this so? Sir, because of सर जिस वजह से वो टूटे ना, वो ब्रेक ना हो। कौन नहीं टूटेंगे वो? इशिता तिवारी, तुम इसे बताओ जरा अंशिका त्यागी को। इशिता, क्या होता है इशिता त्यागी? कभी कभी थर्माकोल में भी लाते हैं, थर्माकोल का कंटेनर होता है, उसका पैक करके लाते हैं। तन्वी मंगल। सर अगर जैसे कि ब्रेकर्स वगैरह आए तो वो ब्रेक ना हो। ब्रेक क्यों नहीं होंगे? वो ऐसा क्या कर देते हैं? सर जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। क्या बोला सारस्वत? ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फोर्स कम हो जाता है, इस वजह से ब्रेक होने के चांसेस क्यों हो जाते हैं? क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि सर जो भी वो होता है बीच में, हम या तो पेपर या कुछ भी हम लगाते हैं, तो जो फोर्स होती है वो पेपर पे ज्यादा टाइम ज्यादा आ जाता है, तो वो पेपर या जो भी हमारा मीडिएटर होता है उस पर ज्यादा एक्ट करती है। और मीडिएटर की वजह से टाइम इंटरवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है और टूटने के चांस कम हो जाते हैं। दैट्स द कॉज, राइट। अब देखो बेटा, अगर ध्यान से देखे तो ये फोर्स क्या होता है? dp over dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताया था ना। एंड टाइम इंटरवल ऑल्सो dt, d का मतलब डिफरेंस होता है, dt से dt कैंसिल। देन इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। Impulse is also equal to change in momentum. बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, वरना कोई फायदा नहीं मेरे समझाने का। ओके, now the time is over.